Hello everyone. Last lecture, that is topic number 14, is nothing but the basic principles of organic chemistry. We are already completed introduction part. In this introduction part, we are completed first C1 to C10 chart, then second C11 to C20 chart, then we are completed types of carbon atom, then we are completed types of hydrogen atom, and next we are completed different types of alkyl group and different types of CET, NEAT and JEE level type of groups such as phenyl group, allyl group, propargyl group, benzyl group, benzyl group and benzo group. These are the very important for according to state board level, NCERT as well as nothing but the CET, NEAT and JEE level point. Now we are continuous the same topic. New point is nothing but the structural representation of organic molecule. Structural representation. अच्छा what is mean by structural representation of organic molecule? आप लोगों को तो पता है organic molecule means organic compound such as methane, ethane, propane. These are the organic compound. How they are right? How they are represented? By structurally. So they are represented by different types of formulas. Such formulas is nothing but the first one, molecular formula. These organic compounds or organic molecules are represented by second one, structural formula. These organic molecules or compounds are represented by complete structural formula. Next formula is nothing but the condensed formula. And last formula is nothing but the bond line formula. So what is mean by molecular formula? What is mean by structural formula? Complete structural formula, condensed formula and bond line formula. We are completed step by step. First is nothing but the molecular formula. What is mean by molecular formula? Total number of carbon atom, total number of hydrogen atom as well as other elements is nothing but the molecular formula. For example, हम लोग लिखते हैं ना, अभी एक एग्जांपल मैंने लिया CH4. CH4 is nothing but the molecular formula of methane. Next और एक एग्जांपल ले लेता हूँ C6H12O6. These are the molecular formula of glucose. D plus glucose, D plus, D minus fructose. These are the very important according to glucose and fructose. These are the molecular formula. Means total number of carbon, that is 6 carbon. This is only one carbon. Total number of hydrogen, that is 12, 4. And total number of other elements. They are combined together to make a formula. This is nothing but the molecular formula. ठीक है, या तो आपको समझ में आ गया. दिस टोटल सब कंप्लीशन एक साथ लेने के बाद जो फॉर्मूला बन जाएगा इज नथिंग बट द मोलिकुलर फॉर्मूला. सेकेंड वन इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स फॉर एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया प्रोपेन. प्रोपेन में CH3 bond CH2 bond CH3 is nothing but the propane. CH3 bond CH2 is nothing but the propane. These are the structural formula. In this structural formula, we are denoted carbon bond only. As well as other bond still वो भी हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन main carbon bond only. Do not show the bond between carbon hydrogen. These are the structural formula. What is the molecular formula of this compound? What is the molecular formula? These are nothing but the propane. Okay, these are nothing but the propane. In this propane, the molecular formula is total number of carbon atom 1, 2, 3, that is C3. Then total number of hydrogen atom 3, 2, 5, 6, 7, 8, that is H8. Means these are the structural formula of given organic molecule or compound, that is nothing but the propane, and these are the molecular formula of given compound, that is organic molecule, that is nothing but the propane. Structural only carbon having a bond. This is nothing but the single bond as well as double bond, triple bond, कुछ भी दिखा सकते. For example, second one example is nothing but the CH3 bond CH double bond CH2. These are also is nothing but the structural formula.
आणि इन दिस स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वी आर शो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड as well as कार्बन कार्बन double bond as well as also show कार्बन कार्बन triple bond also, but only carbon atom, not hydrogen. These are the structural formula. For example, these are the propene having a structural formula propene, pro1ene. What is the molecular formula of given compound? Molecular formula means क्या है? Total number of carbon atoms. How many carbon atoms are there? 1 2 3 3 carbon atoms. Total number of hydrogen atom. What is the mean by total number? 3 4 5 6, that is H6. Means दोनों में क्या डिफरेंस है? C3H8 C3H6 means these are the single bonded, these are the double bonded. These are the general formula CnH2n plus 2. These are general formula of alkene CnH2n. So these are the structural formula of propane. These are the molecular formula of propane. These are the structural formula of prop1ene. These are the molecular formula of C3H6, that is the मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, आपको ये तो समझ में आ गया मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला. सेकेंड वन इज नथिंग बट द नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. अभी इसमें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. इसमें कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड राइट कर सकते हैं. व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नथिंग बट द वी आर शो कार्बन कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज hydrogen bond also. So it is also called as dash structure. It is also called as dash formula. Complete structure formula is nothing but the dash dash formula. For example, अभी इस एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल CH3 bond CH2 and CH3 is nothing but the propane. These are nothing but the propane. In this propane is nothing but the structural formula because carbon carbon shows only bond. This is structural formula. Then C3H8 is nothing but the molecular formula. Total number carbon, total number of hydrogen is nothing but the molecular formula. What is the mean by complete structure? In this complete structural formula, कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, ओके, कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड प्लस हाइड्रोजन एटम, दैट इज हाइड्रोजन एटम. दिस कार्बन एटम हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम 1 2 3. दिस कार्बन एटम हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम सेंटर 1 2. दिस कार्बन एटम हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम 3. मींस 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड 1 थर्ड. मींस these are the structural formula of propane. These are the molecular formula of propane. These are the complete structural formula of propane. These are the different one. Means these are also called as dash structure because of each and every carbon as well as other element, that is hydrogen, are shows bonds. So just like a dash, so is called also dash formula. Next one is nothing but the condensed formula. What is mean by condensed formula? Condensed formula means डिफरेंट ब्रैकेट वाले जो फॉर्मूले जो रहेंगे इज नथिंग बट द कंडेंस फॉर्मूला. अभी ब्रैकेट वाले फॉर्मूले, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल में ए वाला फॉर्मूला लिख दिया CH2 4 टाइम्स CH3. दिस आर द मीन जस्ट लाइक कंडेंस फॉर्मूला. मीन्स मैं डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल आपको लेने वाला हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मोलिकुलर, स्ट्रक्चरल, कंप्लीट स्ट्रक्चरल, कंडेंस और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. बट दीज आर द कंडेंस फॉर्मूला. मीन्स जिस फॉर्मूला में आप लोगों को ब्रैकेट दिखाई देगा, इस तरह से ब्रैकेट दिखाई देगा. फॉर एग्जांपल इस तरह से भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं. ओके, इस तरह से भी आप लोग एग्जांपल कंप्लीशन कर सकते हैं. इस तरह से भी कुछ भी डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल रह सकते हैं. ये वाले जस्ट एग्जांपल बने. मीन्स ब्रैकेट वाले फॉर्मूले, इस तरह से भी फॉर्मूले आ सकते हैं. दिस ब्रैकेट फॉर्मूला इज नथिंग बट द condensed formula. And the last one is nothing but the bond line formula. What do you mean by bond line formula? Bond line formula means do not write carbon and hydrogen atom and carbon hydrogen छोड़ के जो भी atoms रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या करना है आपको सिर्फ राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रोपेन का लिखना है, प्रोपेन, तो क्या लिखूंगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. दिस आर द प्रोपेन. इसका मैं
बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको क्या करना है, डू नॉट राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिसाइड कार्बन एंड हाइड्रोजन कौन सा भी एटम रहेगा, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और लिख सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो डू नॉट राइट मीन्स वन कार्बन वन डॉट, second dot and third dot. This is the first carbon, second carbon, third carbon. These are nothing but the bond line formula. Only write the bonds. Do not write the carbon and hydrogen. And other element, that is chlorine, fluorine, we are write also. These are the bond line formula. Means how the organic molecules can be represented by structurally. They are represented by different types of formulas such as molecular formula, structural formula, complete structural formula, condensed formula as well as and bond line formula also. Now we are completed all this point with suitable example. तो according to state board level और according to CET NEET and JEE level different types question आ सकते हैं, such as इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखो, तो हम लोग एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और इस एग्जाम्पल से हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले कंप्लीट करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल complete the molecular formula, structural formula, complete structural formula, condensed and bond line formula of given compound. इसमें कौन सा भी कंपाउंड दिया जा सकता है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है n ब्यूटेन, हम लोगों को n ब्यूटेन कंप्लीट करना है। इस n ब्यूटेन से हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो राइट मैंने किया है एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को मैंने भी 5 फॉर्मूले राइट कर दिए, लेकिन इसमें से कौन से भी 3 या 4 राइट के लिए आ सकते हैं और वो राइट करने के लिए आपको 3 और 4 मार्क्स मिल गए। 1 फॉर्मूला वी आर राइट ओनली 1 मार्क, सो टोटल 5 मार्क्स के लिए 5 फॉर्मूले राइट करना पड़ेगा, 4 मार्क्स के लिए 4 फॉर्मूले राइट करना है और 3 मार्क्स के लिए 3 फॉर्मूले राइट करने पड़ेंगे। अभी इसमें एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है n ब्यूटेन, तो इसके हम लोग कंप्लीट करना है फर्स्ट मोलिकुलर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आने के बाद फर्स्ट हमेशा कंप्लीट करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बाद में आप लोगों को कंप्लीट करना है बॉन्ड लाइन और मोलिकुलर जो भी रहेगा। फर्स्ट कौन सा कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मैं फर्स्ट कंप्लीशन करता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, दीज आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में देखिए व्हाट इज मीन बाय n ब्यूटेन, ब्यूटेन इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 having ANE means all carbon atom having single bond और n means straight chain, no branching, isobutane भी हो सकता है। ओके, सेकेंडरी मीन्स ऐसे n ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये वाला पॉइंट हो सकता है। तो अभी इधर n लिखा है, n मीन्स स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचिंग। मीन्स हम लोगों को किस तरह से कंप्लीट करना है, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन एटम 1 2 3 4, these are 4 कार्बन एटम हैविंग सिंगल बॉन्ड, ANE हैविंग सिंगल बॉन्ड। अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। व्हाट इज द वैलेंसी, दिस कार्बन एटम हैविंग टोटल वैलेंसी इज 4। नाउ वेयर ये वैलेंसी कंप्लीट करने अभी हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड, तो 3 हाइड्रोजन, दैट इज नथिंग बट द CH3। दिस कार्बन एटम हैविंग रिक्वायर्ड 2 hydrogen atom for completion of this valency, so is nothing but the CH2, is nothing but the CH2, is nothing but the CH3. These are the structural formula of butane, n butane, isobutane भी हो सकता है, इसलिए n butane। second point is nothing but the, अभी हम लोग ले सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। अभी इस मोलिकुलर फॉर्मूला में आपको एक समझ में आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। अभी मोलिकुलर फॉर्मूला मींस क्या, कि मोलिकुलर फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एलिमेंट्स। इसमें अगर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन दिखाई दे रहे, कार्बन है और टोटल हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के एक भी अदर एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं। सो टोटल कार्बन और टोटल हाइड्रोजन लिखने के बाद जो भी फॉर्मूला बनेगा इज नथिंग बट द मोलिकुलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अभी टोटल कार्बन एटम कितना है 4, तो C4। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5, 3 2 5 दैट इज 10, मींस
C4H10 is nothing but the molecular formula of given compound. CH3, CH2, CH2, CH3 is the structural formula. C4H10 is the molecular formula. Then third one, complete structural formula. आता कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा जाए तो कंप्लीट मीन्स डैश स्ट्रक्चर, and in this dash structure we are write carbon carbon single double और triple bond as well as carbon hydrogen bond also. मग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में अभी इधर तो सिंगल बॉन्ड ही है तो कार्बन कार्बन में ऑलरेडी मैंने लिख दिए. अभी हाइड्रोजन के बॉन्ड लिखने के बाद जो भी फॉर्मूला बनेगा इज नथिंग बट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल कार्बन 1, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, राइट. टोटल 4 कार्बन, ब्यूटेन हैविंग स्टेट चेन n ब्यूटेन, और इसके बाद में अभी वैलेंसी कंप्लीट करना है. तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन के पास 1 वैलेंसी है और कितनी की जरूरत है तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है. लेकिन मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अभी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको लिखना है 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, बिकॉज कंप्लीट मीन्स और डैश स्ट्रक्चर मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हैविंग सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड राइट करना है एज वेल एज कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो भी क्लोरीन हाइड्रोजन रहेगा उसके भी बॉन्ड आप लोगों को दिखाना है. सो इज नथिंग बट द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट के लिए 1 2, इसकी वैलेंसी कंप्लीट के लिए 1 2 और इसकी वैलेंसी कंप्लीट के लिए 1 2 3. ओके, अभी इसके जो भी हाइड्रोजन आइटम है वो आपको राइट करना है. अभी ये हाइड्रोजन आइटम के लिए 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड एंड थर्ड. मीन्स these are the structural formula of n-butane, these are the molecular formula of n-butane, these are the complete structural formula of n-butane. N means straight chain, that is no branching. Next point is nothing but the structural formula, molecular formula and complete structural formula. In this complete structural formula नेक्स्ट हम लोग को कंप्लीट करना है कंडेंस फॉर्मूला. आता कंडेंस फॉर्मूला मीन्स क्या? तो कंडेंस फॉर्मूला मीन्स ब्रैकेट वाले फॉर्मूले. अभी ब्रैकेट वाले फॉर्मूले कैसे कंप्लीट करना है? तो ब्रैकेट वाले फॉर्मूले कंप्लीट करने के लिए जो भी सिमिलर ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अभी इसमें देखा जाए तो CH3 सिमिलर है, इसमें देखा जाए CH2 सिमिलर है, सेम दिखते हैं. तो सिमिलर वाले ग्रुप ब्रैकेट में राइट करना है, इसको कंडेंस फॉर्मूला कहते हैं. लेकिन कौन से सिमिलर वाले वो भी आपको मालूम होना चाहिए. जो भी सिमिलर ग्रुप्स, देखो जो मैं बोलता हूँ कि जो भी सिमिलर ग्रुप्स जो ब्रैकेट में राइट करने वाले तो वो जितने ये आसपास रहेंगे उतना अच्छा. जितने दूर वाले ये वाला सिमिलर है, ये वाला सिमिलर है, वो आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है. लेकिन आसपास वाले एक कनेक्टेड वाले जो भी ग्रुप्स है तो वो ब्रैकेट में लिखना है. फॉर एग्जांपल अभी ए और ए अलग अलग है, दूर दूर तक है, तो इसको राइट करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है. तो फर्स्ट आएगा CH3 एज इट इज रह गया. अभी ये दो आपस में जुड़ गए, आपस में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. तो ए वाला एक सेम है CH2, ए वाला भी CH2 सेम है. तो CH2 दैट इज नथिंग बट द मिथिलीन ग्रुप. हाउ मेनी मिथिलीन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर? 2 मिथिलीन ग्रुप. 1 CH2, सेकेंड CH2, 2 मिथिलीन ग्रुप्स आर प्रेजेंट. सो ब्रैकेट में आप लोगों को CH2 लिखना है और ये CH2 कितनी बार है? 1 2 ट्वाइस टाइम. तो आपको ये ट्वाइस टाइम लिखना है. अभी रह गया आपका ये वाला CH3, तो ये वाला CH3 मैंने इधर लिखा है. दीज आर नथिंग बट द कंडेंस फॉर्मूला. मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, कंप्लीट मीन्स टोटल डैश स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन. कंडेंस फॉर्मूला मीन्स ब्रैकेट वाले फॉर्मूले. जो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? जो सिमिलर ग्रुप्स है, दैट इज मिथिलीन ग्रुप इधर सिमिलर है और जो आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको क्या करना है? आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है. ओके. और जो आपस में जुड़े नहीं, जो अलग अलग दिशा में, एक इधर लेफ्ट साइड में, एक टोटली राइट साइड में, सेम है लेकिन अलग अलग है, तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते. तो इसी तरह से उनको लिखना है. जो ब्रैकेट वाले है उसको कंडेंस फॉर्मूला कहते हैं. और लास्ट वाला इज नथिंग बट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. अभी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बोल दिया था. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मीन्स क्या? कि डू नॉट राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन
only write other elements beside carbon and hydrogen such as chlorine, fluorine, bromine, etc. ओके अभी इसमें कार्बन है 4 है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मीन्स फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम. These are the bond. Do not write carbon, do not write hydrogen. और कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के जो भी रहेगा राइट करना है. अभी इसमें कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के कुछ भी नहीं है तो these are nothing but the bond line formula. मुझे what is the complete molecular complete structure condense and bond line formula of n-butane. These are the structural formula. These are the C4H10. These are the molecular formula. These are nothing but the complete structure formula is nothing but the dash structure. These are is nothing but the CH3 bond CH2 is nothing but the condensed formula because they write the in bracket. And last one is nothing but the bond line formula. That is do not write carbon and hydrogen atom. Okay. Last point we are completed. The first question is nothing but the write the complete formula, molecular formula, complete structural formula, bond line formula and condensed formula of n-butane. Now we are continuous the new example that is nothing but the same question. Complete the molecular formula, structural formula, complete structural formula, condensed and bond line formula of given compound that is 2,2-dichloropentane. अभी 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन के हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है? फर्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अच्छा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस फर्स्ट कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आने के बाद अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल रहेगा, सीईटी, नीट और जेई लेवल रहेगा तो हम लोगों को कंप्लीट करना है फर्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल में इधर क्या लिखा है? पेंटेन. पेंटेन मींस हाउ मेनी कार्बन एटम? 5. तो फर्स्ट 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5. इन दिस 5 कार्बन एटम हैविंग सेकेंड नंबर हैविंग डाइक्लोरो मीन्स 2 क्लोरीन एटम इधर अटैच है तो किधर किधर है? सेकेंड. दैट इज मीन्स दिस फर्स्ट नंबर पोजीशन अगर मैंने पकड़ा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तो इधर सेकेंड नंबर पोजीशन में 1 क्लोरीन है और इधर भी 1 क्लोरीन एटम अटैच है. दैट इज क्लोरीन ये इधर राइट करना है. अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है. अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए पेंटेन मीन्स 5 कार्बन एटम, एनी मीन्स सिंगल बॉन्ड और 2,2-डाइक्लोरो 1 2 सेकेंड नंबर का क्लोरीन. इधर से भी राइट कर सकते हैं, इधर से भी राइट करते हैं. हम लोग अभी लेफ्ट से राइट करें तो 1 2 नंबर कुछ. अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको लगेगा 3 हाइड्रोजन एटम. इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें ऑलरेडी 4 बॉन्ड है 1 2 3 4 तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है. अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें 1 2 2 वैलेंसी कंप्लीट है. अभी 2 वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है दैट इज CH2. अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आल्सो CH2 और इसकी वैलेंसी के लिए एक ही बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 3 की जरूरत है. दिस आर नथिंग बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड दैट इज 2,2-डाइक्लोरोपेंटेन. नेक्स्ट वन मोलिकुलर फॉर्मूला. इन दिस मोलिकुलर फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड other elements. अभी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 5 दैट इज C5. अभी हाइड्रोजन एटम कितना है देखो 3 2 5 3 2 5 दैट इज 10 मीन्स C5H10. अभी ये छोड़ के कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के अदर एलिमेंट्स कौन से? तो क्लोरीन है और वो कितने हैं? 2 है तो दैट इज Cl2 मीन्स C5H10 Cl2 इज नथिंग बट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड. ओके नेक्स्ट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अभी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करना है? अभी ये जो कंपाउंड है इसी में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैचमेंट है उसके भी बॉन्ड आप लोगों को दिखाना है. अभी कैसे दिखाना है देखिए टोटल कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 और सेकेंड नंबर को 2 क्लोरीन है 1 क्लोरीन सेकेंड क्लोरीन ये हो गया. अभी क्लोरीन का हो गया. अभी इसका हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट करने कंप्लीट करने के लिए दैट इज वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत है. दैट इज इट रिक्वायर्स 3 बॉन्ड दैट इज 1 2 3. इट रिक्वायर्स 1 2 3 4 तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है. इसकी वैलेंसी के लिए 1 2 तो 2 की रिक्वायरमेंट है. इसकी के लिए देखो 1 2 तो 2 की रिक्वायरमेंट है यानी कि टोटल 4 होना चाहिए. 4 वैलेंसी रहती है कार्बन की तो 1 2 3. अभी इसमें क्या लिखना है?
these are nothing but the hydrogen atom. अभी इधर 3 हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने एक साथ लिखे हैं, अभी इसको अलग अलग लिखना है. These are nothing but the dash structure और complete structure फॉर्मूला. इधर लिखने की जरूरत है, ऑलरेडी क्लोरीन एटम है, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर है, इधर, इधर और इधर. These are nothing but the complete structural formula. These are structural formula. These are complete. That is nothing but the dash structure. And these are the molecular formula. C5H10Cl2. Then condensed formula. Condensed means similar atom वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखना है. That is nothing but the. अभी इधर CH3 है, इधर CH3 है, लेकिन वो दो अलग अलग, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो अलग अलग है, तो एक साथ नहीं लिख सकते. अभी इधर दो क्लोरीन एटम जो सिमिलर है तो ए ब्रैकेट में लिख सकते हैं. इधर CH2 है, इधर CH2, दैट इज दो क्लोरीन है, इधर CH2 है, CH2, ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं. तो ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर CH3, अभी ए वाला ब्रैकेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास कार्बन एटम है, तो इधर कार्बन एटम आ गया, इधर ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट में एक दो क्लोरीन एटम आपको लिखना है. फिर इधर दो CH2 है, इसका ब्रैकेट आ गया CH2, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 टाइम्स, और ये लास्ट में CH3. दैट इज नथिंग बट द कंडेंस फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड. अभी लास्ट में लिखना है आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला. बॉन्ड लाइन फार्मूला मीन्स डू नॉट राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो मैं इधर लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन एटम में कैसे लिखना है. हाँ, फर्स्ट कार्बन, these are second carbon, these are third carbon, these are 4 carbon and these are 5 carbon. Pentane means 1 2 3 4 5 carbon atom and second number आएगा डाइक्लोर. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, कार्बन हाइड्रोजन लिखना नहीं है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के जो भी एटम रहेंगे वो आपको राइट करना है. मैं क्लोरीन लिखना पड़ेगा, लेकिन क्लोरीन किस टाइम पे है, सेकेंड पोजीशन में, सेकेंड पोजीशन 1 2, दैट इज क्लोरीन. मीन्स आपको इसी तरह से आपको राइट कर सकते हैं. दिट इज नथिंग बट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड. Okay, thank you.